स्पेशल ड्राइंग राइट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ इट इज अ स्कीम, क्योंकि स्पेशल ड्राइंग राइट्स का एक बहुत ही इलैबोरेटिव टॉपिक ऑलरेडी है, तो मैं उसके लिए सिर्फ नाम ले रही हूँ. स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज जस्ट अ स्कीम ऑफ IMF जिसके थ्रू कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज कैन बोरो मनी फ्रॉम IMF and that borrowed money can be used to make payment to another countries. So next source of international liquidity is willingness of another countries to accept our currency. अगर कोई दूसरी कंट्री रुपीस में पेमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है तो ये भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी ही है, क्योंकि हम हमारी करेंसी का ही यूज करके फॉरेन कंट्री को पे कर पा रहे हैं, पेमेंट्स कर पा रहे हैं, बिकॉज फॉरेन कंट्री इज विलिंग टू एक्सेप्ट आवर डोमेस्टिक करेंसी. वो उसका क्या करेगी वी डोंट नो, but if any country is helping us and is ready to accept our currency as the receipt, हम उन्हें पेमेंट हमारी करेंसी में कर रहे हैं और वो रेडी है उन्हें रिसीव करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Next source of international liquidity, sixth source of international liquidity is ability to attract foreign capital. हम अगर हमारी country is an attractive destination for other countries to invest, अगर कोई foreign country हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगी, सो दिस इज एन एबिलिटी ऑफ आवर कंट्री कि हमारी कंट्री एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, फॉरेन कंट्रीज आकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट करती है दैट मींस फॉरेन कैपिटल इज कमिंग, डॉलर्स आर कमिंग in the country and this dollars can be used to make payments to some other countries. Clear everyone? Yes. So let's just revise these 6 sources. International liquidity का मतलब है हर वो रिसोर्स जिससे हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री को पेमेंट कर सकती है. अब हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री को तभी पेमेंट कर पाएगी जब फॉलोइंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल. First resource is foreign gold reserves और foreign exchange currencies का reserve किसके पास present होना? Present with RBI. RBI के पास. Yes. Second source of international liquidity is foreign exchange earnings. वो earnings जो हमारी country कमाती है by exporting goods. Clear? Earnings होंगी तो we will be able to make payments. Yes. Third is borrowing facility from International Monetary Fund. पैसा जो हम IMF से लोन के रूप में ले सकते हैं. Fourth source is special drawing rights, a kind of scheme started by IMF जिसके थ्रू countries can take loan from IMF and use that money to make payment to other countries. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fifth is willingness of any foreign country to accept our currency. अगर कोई foreign country पेमेंट्स के रूप में अगर हमें पेमेंट करना है तो हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, वो हमसे रुपी में ही पेमेंट लेने को तैयार है, तो दैट्स गुड. दैट इज आल्सो अ फॉर्म जिसके थ्रू हम पेमेंट कर पा रहे हैं दूसरी कंट्री को. Sixth and the last source of international liquidity is ability of our country to attract. कौन बताएगा हमारी कंट्री की एबिलिटी कि हम दूसरी कंट्री से क्या ले पाए? फॉरेन कैपिटल ले पाए या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाए.
अगर इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में होंगे डॉलर आएगा आएगा एंड दैट डॉलर कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट टू अनदर कंट्रीज. क्लियर? Yes, ma'am. नाउ इंटरनेशनल लिक्विडिटी के दो कंपोनेंट्स हैं. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी एंड द कंपोनेंट्स आर not profit and loss account. Please wait. Yes, so components of international liquidity. Ma'am, हाँ बेटा. when will you get the pamphlet? Yes, I also want that you should get the pamphlet because it will be very easy for you to underline directly from pamphlet. तो most probably coming week में मिल जाएगा क्योंकि marketing का शायद इस week आया है तो IF का कल आ जाएगा मतलब next week आ जाएगा. International liquidity has two components. The first component is supply of international liquidity and the second component is demand of international liquidity. Now, when we talk about supply of international liquidity means sources available to make payments to other countries. वो सोर्सेस जो हमारे पास हैं जिनका यूज करके हम फॉरेन कंट्रीज में पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस. यस, गोल्ड माइंस अगर हमारे पास रहेंगे तो वी कैन यूज दिस गोल्ड टू मेक पेमेंट टू अनदर कंट्रीज. नेक्स्ट इज बी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. अगर हम अर्निंग कमाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे एक्सपोर्ट करके, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. तो डॉलर्स अगर हम कमाएंगे, एक्सचेंज अर्निंग्स यानी जब हम एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाएंगे तो दैट वी कैन यूज टू मेक पेमेंट. सी इज receipts. C is capital inflow. Now capital inflow can be on the account of investment due to investments, and the fourth is unilateral receipts. अगर हमें कोई हेल्प करेगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, unilateral receipts. And next is receipt of gold. Receipt of gold by RBI from other countries. Is it clear? What is supply of international liquidity? वो sources जिससे हम दूसरी कंट्रीज को पेमेंट कर सकते हैं. तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं भाई? गोल्ड माइंस होंगे तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स होगा, उसका यूज करके हम दूसरों को पेमेंट कर पाएंगे. फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करके एक्सपोर्ट करके अर्निंग्स कमाएंगे जिसका यूज करके हम दूसरी कंट्रीज को पेमेंट कर सकते हैं. Third is capital inflow due to investments. If we are able to attract investment in our country, foreign investment हमारी कंट्री में हो रहा है तो dollars are coming. Yes. Dollars are coming. Yes. So that can be used to make payment. Unilateral receipts. Unilateral, एक तरफा donations and help if we are receiving from other countries. तो उसका यूज करके हम किसी और कंट्री को पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई फ्रॉम अदर कंट्रीज. आरबीआई को अगर गोल्ड रिसीव हो रहा है दूसरी कंट्रीज से तो इस गोल्ड को भी यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी व्हिच मींस सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. नाउ डिमांड ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी मींस ट्रांजैक्शंस where we need to pay
to other countries. ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहां हमें दूसरी कंट्रीज को पे करना होता है? दैट इज डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी. डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी कंप्राइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स. हम इंपोर्ट करते हैं जब भी हमें किसकी जरूरत है? डॉलर की जरूरत है टू मेक, टू पे टू Other other countries. Yes. Second, why we need we need because of capital outflow. If we need to invest in some other country, capital outflow, because we need to invest in other countries, so we must have dollars. C is unilateral transfers, यानी हमें डोनेशन देना है, हमें हेल्प करना है, तो हमारे पास डॉलर होना चाहिए. तो जब डॉलर होना चाहिए in order to make payment, that is demand for international liquidity. This concept is more or less same with supply of dollars and demand of dollars. Clear to everyone? Is the concept of supply of international liquidity and demand of international liquidity clear? Why we need dollars? This means demand for international liquidity. We need dollars ताकि we can import goods. We need dollars to invest in other countries. We need dollars to give unilateral transfers to another countries, that is help to another countries. कोई doubt इसमें? Slept? No doubt, ma'am. No doubt. Is the concept clear to you? Yes. Only one student is answering. Is the concept clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए next आते हैं problem of international liquidity. Now, why problem of international liquidity arises? Problem of international liquidity. यानी मैम ये लिखना नहीं है नाम को? You can write. नोट्स बना सकते हैं. पैम्पलेट जब आएगा तब फिर क्या होगा? अंडरलाइन आपको खुद करना पड़ेगा. अदरवाइज if you want to write, you can write very short. मैं कुछ भी बहुत ही ऐसा इलैबोरेटिव वे में नहीं लिखा रही, बहुत शॉर्ट है. आपको लिखना है आप लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं इट्स ओके. आपको पैम्पलेट में सब दिया है. प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्यों अराइज होती है? बिकॉज शॉर्टेज ऑफ. क्यों इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है. राइट? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है इन ऑर्डर टू Make payments. Is it clear? What is the meaning of international problem of IL? Problem of IL तभी arise होती है जब किसी भी कंट्री के पास शॉर्टेज है फॉरेन करेंसीज की, वो पेमेंट दूसरी कंट्रीज को नहीं कर पा रही है. This is problem of international liquidity. It arises because of, first is deficit in BOP. Do you agree or not? Do you know the meaning of deficit? Yes. Now, what is deficit in BOP? Earnings are less. Then Earnings are payments. less than payments. तो now if earnings will be less, so कहाँ से हम foreign exchange लाएंगे दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करने के लिए? इसीलिए शॉर्टेज इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, शॉर्टेज डॉलर्स की, शॉर्टेज फॉरेन एक्सचेंज की तभी होती है सबसे पहले जब हमारे बीओपी में डेफिसिट होता है. You are well aware BOP deficit means a situation when your earnings are very less. यानी डॉलर आंदो बहुत कम है और जान दो बहुत ज्यादा है. भाई तो जब आंदो आएगा ही नहीं तो पेमेंट कैसे कर पाएंगे डॉलर्स का? That's why the problem of international liquidity arises. Second reason why problem of international liquidity arises is high tariffs charged by developed countries
high tariffs charged by developed countries from developing countries. Yes. So what happens when developing countries like Sri Lanka, Nepal, India export their goods to developed nations like America, England, France, Spain? तो क्या होता है, वो कंट्रीज हमारे गुड्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, वो कंट्रीज हमारे गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाती है, टैक्सेस लगाती है, ताकि इंडियन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट यानी उनकी कंट्री के मार्केट में सेल नहीं हो पाए. जब हमारी कंट्री के गुड्स बाहर सेल नहीं हो पाते, our exports are less. If our exports are less, तो foreign exchange earnings are also less. Foreign exchange earnings are also, come on everyone, foreign exchange earnings are also less. समझ में आया? हाई टैरिफ्स चार्ज बाय डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. तो यहाँ पे कौन किसको गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे कौन किसको गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है? बोलो. डेवलपिंग की Developing country. डेवलपिंग कंट्रीज आर वांट कि उनका प्रोडक्ट कहाँ सेल हो? डेवलप्ड कंट्रीज में सेल हो. अब डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज की गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी. तो वो क्या करते हैं, हमारे गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा देते हैं, ताकि उनकी कंट्री के लोगों को हमारे गुड्स इजीली अवेलेबल ना हो पाए, महंगे मिले. तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाते. डेवलपिंग कंट्रीज के गुड्स इजीली डेवलप्ड नेशन में सेल नहीं हो पाते, तो हमारी एक्सपोर्ट्स इजीली नहीं हो पाते. एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड एज अ रिजल्ट अर्निंग्स आर लेस. If earnings are less, there will be the problem of international liquidity. Is the concept clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next reason why the problem of international liquidity arises is uneven distribution of resources. Uneven distribution of resources. Uneven distribution of resources means यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं है. देखिए क्या होता है, IMF हर कंट्री के लिए कोटा फिक्स करता है कि इंडिया को इस साल इतना लोन्स मिलेगा. एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट. यस, तो क्या कहने का मतलब, IMF every year fixes quota for the member countries. यानी IMF allocate करता है कि इस साल इंडिया को इतने बिलियन डॉलर का लोन मिलेगा, अमेरिका को इतने बिलियन डॉलर्स का लोन मिलेगा, इस कंट्री को इतने बिलियन डॉलर्स का लोन मिलेगा. उसमें से जब ये एलोकेशन होता है, तो पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को जो अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है वो कम हो जाएगा, कम होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस. IMF भी डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा फेवर करता है. इसीलिए there is uneven distribution of resources. Poor countries are already not having foreign exchange. फिर जब लोन लेने की बारी आती है, तो IMF उन्हें ज्यादा अमाउंट का लोन भी नहीं प्रोवाइड करता. ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन नहीं मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा नहीं मिलेगा, तो डेवलपिंग पुअर कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करने नहीं कर पाती, उन्हें प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने में, उन्हें शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी फेस करना पड़ता है. Is it clear to everyone? So when I talk about uneven distribution of resources, this means that IMF allocates or fixes
smaller quotas for developing and poor countries in terms of granting loan. Is it clear to everyone? तो uneven distribution of resources बोले तो IMF, देखिए अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर मेंबर कंट्री से पहले तो चंदा इकट्ठा करता है. IMF के पास पैसा कहां से आया? जैसे मान लीजिए I am IMF and you are member countries, तो मेरे पास तो पैसा कहां से आएगा? मेरे पास पैसे के लिए मैं सबसे पहले मेंबर कंट्रीज से चंदा कंट्रीब्यूशन लूंगी. इस जो इकट्ठा हुआ कंट्रीब्यूशन है वो मैं एलोकेट करूंगी कंट्रीज के बीच में, जिसे लोन्स की जरूरत है उनके बीच में एलोकेट करूंगी. अब IMF चलता ही बड़ी पार्टीज की वजह से है, जो डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से है, जो उसको इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं. तो IMF हमेशा डेवलप कंट्रीज को ही फेवर करता है. जब लोन देने की बारी आती है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो कोटा फिक्स होता है, जो अमाउंट एलोकेट होता है, वो लेस होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Fourth is attitude of developed nations. Now, attitude of developed nations is not good towards developing countries. Developed nations कभी भी ये नहीं चाहा, कभी भी फेवर नहीं करते डेवलपिंग नेशंस को, ऐसा देखा गया है. राइट नाउ दिस सिचुएशन इज नॉट देयर. थैंकफुली इंडिया इज फेसिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट ये पॉइंट पैम्पलेट में है कि डेवलप्ड नेशंस कभी भी अपना सरप्लस फोरगो नहीं करते. दे आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस their surplus in favor of developing nations. Clear? तो जनरली एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड नेशंस भी फेवरेबल नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ. डेवलप्ड कंट्रीज अपना सरप्लस सैक्रिफाइस नहीं करती हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, तो भी डेवलपिंग नेशंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कहने का मतलब ये कि जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, तो व्हाट आर दी पॉसिबल रीजंस, क्या रीजंस हैं जिसके कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की? सबसे पहला रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? रीड एवरीवन. फर्स्ट रीजन इज डेफिसिट इन BOP. डेफिसिट इन BOP सबको पता है क्यों होता है. when our earnings are less and payments are more. तो हमारा BOP में earnings ही नहीं होंगी तो we will not be able to make payment. दूसरा, क्यों इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है डेवलपिंग नेशंस को? क्योंकि पढ़िए, High tariff rate charged by developed countries. फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. चलिए, कौन किसको गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या है इसके Developing पीछे? country, developed country. डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस को गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, पर डेवलप्ड नेशंस आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. वो लोग उनके गुड्स पर क्या चार्ज कर देते हैं? high हाई tariff. टैरिफ. तो क्या डेवलपिंग नेशंस के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो पाते हैं? नहीं एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो अर्निंग्स भी नहीं नहीं होगी. वेरी गुड. थर्ड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है? जब IMF लोन्स देता है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो शेयर एलोकेट होता है, जो कोटा फिक्स किया जाता है, उसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, कम होता है. लेस अमाउंट इज गिवन. तब लेस अमाउंट रिसीव होगा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वो पेमेंट्स भी दूसरी कंट्रीज को नहीं कर पाएंगी. लोन्स का अमाउंट ही इतना कम है तो कैसे यूज करें?
एंड लास्ट इज एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ऐसा पहले देखा जाता था कि डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस को फेवर नहीं करते। तो दिस इज द रीजन जिसके कारण इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलिए पहला रीजन पढ़िए। पहला रीजन क्या था? रीजन में ही आंसर है, डेफिसिट इन बीओपी था। हाँ चलिए, बीओपी में डेफिसिट क्यों होता है? जब अर्निंग कम होती है, पेमेंट अर्निंग कम है, पेमेंट ज्यादा। पेमेंट हमें क्यों ज्यादा करनी पड़ती है? जब हम गुड्स ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यस, तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, तो सबसे पहला है यू नीड टू लिमिट योर लिमिटिंग इंपोर्ट्स। दूसरी कंट्री से सामान मंगाना कम कर दो, तो दूसरी कंट्री को पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए डॉलर्स की जरूरत नहीं होगी, यानी प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी कैन बी सॉल्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलिए सेकंड होगा अर्निंग्स कैसे बढ़ाएंगे? प्रमोटिंग इंक्रीजिंग व्हाट? एक्सपोर्ट्स। यस, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर अर्निंग्स ले आओ, अर्निंग्स ले आओ तो उसके कारण आपके पास डॉलर्स बहुत रहेंगे, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। थर्ड इज expanding international reserves. Now what is expanding international reserves? IMF must change its policy, right? IMF must change the policy and give fresh allocation, fresh quota, and give higher quotas of loans to developing countries. Clear? Understood? Yes? तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी को एक ये तरीके से भी सॉल्व किया जाता है कि आईएमएफ को अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, आईएमएफ को जो कोटा फिक्सेशन है उसको रिवाइज करना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज चेंज इन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। Change in official rate of exchange. Now, what is change in official rate of exchange means? This you have studied, devaluation. Yes, countries must adopt devaluation. What is devaluation? जानबूझ करके increase करना क्या? Foreign exchange rate. Foreign exchange rate increase करना, क्योंकि when you will increase the exchange rate, this will limit imports and increase exports. ये सबको पता है। डिवैल्यूएशन बहुत पढ़ा था। डिवैल्यूएशन मींस deliberately, जानबूझ करके let government lets the rate to rise or increase. Rise. Yes, गवर्नमेंट रेट को राइज करती है जानबूझ करके, उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। क्योंकि डिवैल्यूएशन जब होगा $1 इज इक्वल टू 70 से राइज होके $1 इज इक्वल टू ₹73 हो गया, तो रेट बढ़ रहा है। $1 के लिए 73 रुपीज, ₹3 ज्यादा 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 देने पड़ रहे हैं। भाई इंपोर्ट नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले फॉरेनर्स को $1 में इंडिया से ₹70 का पेन मिलता था, अब इंडिया से $1 में ₹70 का पेन तो मिलता ही है, प्लस ₹3 की एक्स्ट्रा चीज भी मिल रही है। Is it clear to everybody? So next is डिवैल्यूएशन को प्रमोट अगर गवर्नमेंट करेगी तो उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा, उसके इंपोर्ट कम होंगे तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम विल बी
salt. And the last method, last measure जिससे IL की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ, किसका एटीट्यूड चेंज करें? ऊपर पढ़िए, डेवलप्ड कंट्रीज का। यस, अब डेवलप्ड कंट्रीज का कैसे एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है? अभी जैसे क्या करें डेवलप्ड नेशंस ये करें कि इन एक्सचेंज ऑफ their exports, instead of asking for money, they should ask for goods. Goods of developing nations. Is it clear? क्या कहने का मतलब, डेवलप्ड नेशंस को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। डेवलप्ड नेशंस अगर अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में, तो इंडिया को डॉलर देने के बजाय क्या लिबर्टी होनी चाहिए, क्या फ्रीडम होना चाहिए कि पेमेंट को सेटल करने के लिए इंडिया को डॉलर्स नहीं देने पड़े, इंडिया बदले में अपने क्या दे दे? गुड्स। तो इससे क्या होगा? इंडिया विल नॉट रिक्वायर डॉलर्स टू मेक पेमेंट, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड्स अगर हम खरीद रहे हैं तो पेमेंट सेटल करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? सिर्फ गुड्स देना पड़े, डॉलर्स देना ना पड़े। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हाँ, ऑल्सो एक और चीज की जा सकती है, डेवलप्ड नेशंस should ask payment in currency, in domestic currency, of developing nations। ये भी किया जा सकता है कि अगर डेवलप्ड नेशंस को पेमेंट लेना है तो डॉलर्स में ना लेकर डोमेस्टिक करेंसी में ले, डोमेस्टिक करेंसी में ले। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the way जिससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। सबसे पहला is, come on, read on the screen. सबसे फर्स्ट is limiting imports. Others also limiting imports, क्योंकि इंपोर्ट कम करेंगे तो पेमेंट भी कम हो जाएगा। कम करना पड़ेगा। Yes, promoting export प्रमोट करेंगे तो foreign exchange earnings will कम increase. Yes, डॉलर्स कमाएंगे, that is good. Expanding international reserves मतलब IMF को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और हायर कोटा फिक्स करना चाहिए, किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या रास्ता अपना सकती है? डिवैल्यूएशन, जिसमें वो एक्सचेंज रेट को क्या कर दे, जानबूझ करके बढ़ने देती है, बढ़ने दे, तो इससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज change in the attitude of developed countries. Developed countries को अपना attitude change करना चाहिए, उन्हें developing countries से डॉलर लेने के बजाय goods ले लेने चाहिए, goods for goods वाला सिस्टम अपनाना चाहिए, या फिर डॉलर्स में पेमेंट लेने के बजाय डोमेस्टिक करेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री में ही पेमेंट रिसीव करें। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. So is the concept of this clear? International liquidity clear to everyone? Now Yes, this was the content of the first video lecture. तो वो मैंने पूरा का पूरा ही आज समझा दिया। आज जो मुझे नया टॉपिक लेना था वो मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगी। पर आपके लिए आज एक वीडियो है जिसे इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आज ही देखें, आप कल के लेक्चर के बाद भी देख सकते हैं। तो बेटर आप भले आज मत देखिए पर कल के लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा। दैट वीडियो इज बेस्ड ऑन IMF एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी।
So though it is published today, no need to watch today. You should watch it after tomorrow's lecture. But you should watch it. Next time से मैं पूरा वीडियो लेक्चर का कंटेंट जूम पर नहीं पढ़ाऊंगी. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, और पैम्पलेट मैं भी चाहती हूँ पैम्पलेट आ जाए. चलिए, आई विल टॉक एंड टेल की थोड़ा सा जल्दी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाए. हेलो मैम. हाँ, मैम आपने वन नोट में जो अभी करा है ना, सप्लाई ऑफ आईएल एंड डिमांड, उसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेने मिलेगा? बिकॉज आई हैवंट बिल्कुल रिटन मिलेगा. एनीथिंग. होशियार मानस छे. फोटो भी खींचने नोट्स के सारे. फोटो खींचते. चलिए वेट मैम फिर आप समझाते हो तब लिखते हैं ना, तो फिर वेट. शुरू से दिस इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी. मैम थोड़ा जूम आउट करोगे तो भी चलेगा. This is international liquidity का first supply of international liquidity and demand. डन मैम. Then comes problem of international liquidity. जब हम problem of international liquidity की बात करते हैं तो problem arises due to yes, problem of shortage arises due to 4 things. Deficit हो जाता है, high tariff charge करते हैं developed nations, uneven distribution of resources है, और attitude of developed nations are not good. Done. Then how to solve this problem? How to solve the problem of international liquidity? So there are fifth is not coming. Limiting imports, promoting export. And changing the attitude of developed nations. Developed nations का attitude change करना कैसे, वो है skill. Okay. So is it clear to everyone? यस मैम. Yes. Tomorrow we will be studying a new topic, foreign direct investment. कल मिलेंगे. Bye bye. Take care. Bye. Bye बेटा. Bye.